Good morning, dear students. Today we are going to talk on how to write an informal invitation. Informal invitation. Informal invitation. देखिए, इनफॉर्मल इनविटेशन और फॉर्मल इनविटेशन मीन्स इनविटेशन के भी दो प्रारूप होते हैं, दो तरीके होते हैं। जिस प्रकार से हमने रिप्लाई के दो रूप देखे थे, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल, वैसे ही फॉर्मल और इनफॉर्मल दो होते हैं। आज अपन इसमें इनफॉर्मल इनविटेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनविटेशन लिखते समय थोड़ा सा मैं आपको वापस पीछे ले जाना चाहूँगा। जिस समय अपन रिप्लाईज लिख रहे थे तो अपन को ये भी देखना है कि इनफॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल इनविटेशन में मैटर की समानता क्या है। व्हाट इज द सिमिलरिटी ऑफ मटेरियल, व्हाट इज द सिमिलरिटी ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज एंड अदर थिंग्स वी कैन यूज इन बोथ ऑफ देम। इन दोनों में अपन यूज कर सकते हैं। ऐसा वो मैटर कौन सा सिमिलर है उसको अपन को देखना है। सेकेंड थिंग, लिखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने इनफॉर्मल रिप्लाई को एक पूरे बॉक्स में बंद करके लिखा था, उसी प्रकार से इनफॉर्मल जो इनविटेशन होगा आपका, वो भी एक पूरे बॉक्स के अंदर बंद करके लिखेंगे। इसके लिए मैंने ये देखिए आपको यहां ये पूरा बॉक्स बना लिया है। इसके बाद सबसे पहले हमारे पास इनविटेशन लिखने के लिए प्रोग्राम का होना आवश्यक है, कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम एक काल्पनिक प्रोग्राम देखेंगे पहले। इमेजरी, आई एम गोइंग टू गिव यू एन इमेजरी प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन राइट एन इनफॉर्मल इनविटेशन। जस्ट लाइक नीलम invites Naresh occasion tenth birthday of her daughter Nandita. This is an imaginary program. Miss or Mrs. Neelam invites Mr. Naresh on the occasion of 10th birthday of her daughter Nandita. मिसेज नीलम अपनी पुत्री नंदिता के 10वें जन्मदिन के ऊपर नरेश को आमंत्रित करने जा रही है। इनफॉर्मल इनविटेशन इज द इनविटेशन दैट इज यूज्ड और दैट इज रिटन टू ए personally to someone else. Informal invitation is written personally to someone else, somebody else. Here in this program, Neelam will write the invitation because the person who organizes the program will invite other persons, other people. So here other person is Naresh and Neelam is going to organize the function. Then Neelam will write. First of all, we must understand one thing that is very important. जब भी कोई इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा जाता है तो लिखते समय ऊपर ही ऊपर इस तरफ एट दिस साइट एड्रेस लिखा जाएगा और वो एड्रेस होगा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले व्यक्ति का या इनविटेशन जो लिखने जा रहा है उस व्यक्ति का एड्रेस होगा। यहां देखिए नीलम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। नीलम
नरेश को इनवाइट करने जा रही है, तो प्रोग्राम में एड्रेस किसका आएगा, ऊपर ही ऊपर नीलम का आएगा। जस्ट लाइक आनंद नगर जयपुर। टू 210 आनंद नगर जयपुर, and after it we must remember to mention a date, just like April 2020. During writing an informal reply, I disclose to you very clearly that can be mentioned by two types in English language. First, by beginning with day, and second by beginning with month. After it, we will leave a line blank. Only a single line will be left blank just after the date. Then the person who is going to invite will address the person to whom he is going to invite. And who is the person? Naresh. Dear Naresh. Dear Naresh. Dear students, now I want to take you back and I want to tell you the similarities or differences between writing an informal invitation and informal reply. I am glad to invite you. I am glad to invite you on the occasion of tenth birthday party of my daughter Nandita. इन्विटेशन को आगे ले जाने से पहले I want to disclose the difference between an informal reply and informal invitation. Dear students, pay attention on the beginning line. I am glad to invite you. And on the occasion. आप रिप्लाई पे देखिए, I am glad to receive your kind invitation on the occasion. यानी I am glad to receive your kind invitation की जगह I am glad to invite you. और आगे का जो मैटर है on the occasion of 10th birthday party of my daughter Nandita etc. are completely similar. ये सारी चीजें समान हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, वही मैटर है. And now I want to disclose to you, I want to make you remember the three words: day and date, venue. I can mention here venue, day and date, and time. जैसा कि मैंने आपको उस समय बताया था कि जब भी आप इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं
तो क्वेश्चन में नहीं होने के बावजूद भी आप इन 3 वर्ड्स का उसमें मेंशन करेंगे, 3 वर्ड्स को उसमें मेंशन करेंगे। वही सेम थिंग अपन को याद रखनी है। क्वेश्चन में नहीं दिए हुए होने के बावजूद भी आपको इनविटेशन में वेन्यू, डे एंड डेट और टाइम मेंशन करना है। तो देखिए नंदिता, हम आगे इसमें मेंशन करते हैं 8 होटल नीलम पैलेस, फिर डे आ जाएगा मंडे, डेट आ जाएगी ऑन आएगा इसके साथ, पैलेस ऑन मंडे, May.10.2020 8 p.m. 8 p.m. All 3 things we have included, we have used here in this informal invitation. Neelam Palace, Hotel Neelam Palace, Monday, May 10, 2020 at 8 p.m. At last, regards and the name of the person who is inviting or who is organizing the program or who is going to write an informal invitation, who is Neelam. और जहां ये खत्म हो जाएगा वहां अपन ये बॉक्स में नीचे वाली लाइन को क्लोज कर देंगे और ये हमारा ये इनफॉर्मल जो इनविटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का एक पार्ट है और इसकी जो मार्किंग है वो 4 मार्क्स की है। और जब 4 मार्क्स की मार्किंग है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वी मस्ट राइट इनविटेशन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऑलमोस्ट इन 50 वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि हम गिनती करके पूरे 50 शब्द लिखेंगे, इट मे बी एंडेड इन बिटवीन 45 to 55 वर्ड्स। 45 से 55 शब्दों के बीच में अपन इसको जहां भी खत्म होता है वहां खत्म कर देंगे। अब देखिए इसमें समानता देखिए, मैंने कहा था आपको कि इनफॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल रिप्लाई में शब्दों की, भाषा की या फिर जो वाक्य अपन यूज कर रहे हैं उनकी समानता होती है, उनकी बहुत सारी समानताएं होती है। और प्रमुख जो देखिए पहली समानता क्या है कि रिप्लाई में भी आप वेन्यू यूज करते हैं, डेट एंड डेट यूज करते हैं, टाइम यूज करते हैं। रिप्लाई में भी लिखने वाले का एड्रेस ऊपर आता है, इनविटेशन में भी लिखने वाले का एड्रेस ऊपर आता है। इनविटेशन में भी आप वेन्यू, डे एंड डेट और टाइम को यूज करते हैं। इनविटेशन रिप्लाई में भी जिसने इनवाइट किया है उसको एड्रेस किया जाता है, इनविटेशन में भी जिसको आपको इनवाइट करना है उसको एड्रेस करना है। और दूसरी सबसे बड़ी समानता या इसमें जो सबसे बड़ी असमानता है वो क्या है? असमानता सिर्फ इतनी सी है, हाउ टू स्टार्ट, आपने शुरू कैसे किया। और देखिए ऊपर की यदि एक लाइन को मैं हटा दूं या ऊपर की एक लाइन का डिफरेंस यदि हम देख लें तो हमारे सामने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि इनफॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल रिप्लाई में क्या समानताएं हैं और क्या इसमें असमानताएं हैं।
तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि दोनों को देखने के बाद इनफॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल रिप्लाई में समानताएं ज्यादा हैं और असमानताएं बहुत कम। मीन्स इनफॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल रिप्लाई both can be written in same way, only there is a difference how to start it to write. Dear students, today I want to say one thing that is very important, and I want to say that practice makes a person perfect. Therefore you must pay attention. You must do your practice heartily. Without practice, it's not possible to get the things clear as light. मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से अपन ने इनफॉर्मल रिप्लाई के साथ इनफॉर्मल इनविटेशन को कंपेयर करके पढ़ा है, इससे दो फायदे हमें हुए। एक तो इनफॉर्मल रिप्लाई फिर से क्लियर हो गई और दूसरा इनफॉर्मल इनविटेशन का मैटर। और मैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैटर है उस मैटर की समानता के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा जोर है, सबसे ज्यादा ध्यान मेरा मैटर की समानता के ऊपर है, ताकि एक चीज को याद करने के बाद या एक चीज को समझ लेने के बाद दूसरी चीज को लिखने में या दूसरे किसी टॉपिक को लिखने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो।